Good morning, students. Today we'll discuss about our next topic, that is about the change or the changes happen in the demand curve. Generally, the demand curve changes accordingly the movement and the shift. Movement means the demand curve remains same or remains in its original position. The demand curve remains in its original position, does not shift from its original position. Means in that or on that demand curve only we move either upward or downward. हम उसी डिमांड कर्व पे या तो अपवर्ड मूव करते हैं या फिर डाउनवर्ड मूव करते हैं. And the shift in demand curve means the demand curve shifts from its original position and forms a new demand curve. That means अब हमारे पास एक नया डिमांड कर्व आ जाता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड. ओके, so the first one is movement along a demand curve. This is the concept of quantity demanded. You remember we have studied the two concepts. One is demand and other one is quantity demanded. Quantity demanded is the concept in which the different quantities of a commodity are being purchased by the consumers at different prices. Means both the things changes, price as well as the quantity of the commodity. Whereas the shifts in demand curve is the concept of demand, in which the price does not change. Okay, price of the commodity does not change at that particular price. How much quantity is being demanded is called demand. And in quantity demanded, different prices, different quantities. That means the combination. We can see the combinations of demand at different prices, different quantities are being demanded. That is quantity demanded. And at a particular price, the quantity which is being demanded by the consumer is called the demand. Price does not change, price remains constant. That is the concept of demand. Okay, let's move the movement along with demand curve. We have already discussed either we will move upward on the demand curve or we will move downward on the demand curve. First of all, we will discuss about the movement, that is upward the demand curve. When we move up on the demand curve, that is called the contraction of demand. That means demand जो है वो decrease हो जाती है because the price has been increased or may have been increased. Okay, the consumers buy less when the price of the commodity rises, and that is called the contraction of demand. ओके, कंज्यूमर्स जो है किसी कमोडिटी को कम खरीदने लग जाते हैं जब उसका प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं. इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं. दैट मीन्स डिमांड जो है श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है. ओके, और तो प्राइस चेंज होने पे जो क्वांटिटी चेंज हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज हो जाती है, वो चेंज किस तरह का आया है? चेंज आया है डिक्रीज. क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है. क्यों हो गई है? बिकॉज सिंपल सा रीजन है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड जो है उनका नेगेटिव रिलेशन होता है. तो इफ द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज. ओके, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कीप रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स. movement will show the contraction and extension of demand, and the shift will show increase and decrease in demand. Okay, contraction here means the demand has been contracted. इंक्रीमेंट नहीं आया है, कर्व सेम है, कर्व में चेंज नहीं आया है. दैट्स वाई श्रिंक हो गया है, कर्व ही श्रिंक हो गया है, वो नीचे से ऊपर की तरफ चला गया है. दैट मीन्स वी कैन सी इन द ग्राफ इजीली. Here we have when we are moving upward on the curve, see what it is being showing, that initially we were at point A when the price was rupees 4 and the quantity demanded was was 10 units. 10 units of the commodity were being demanded at rupees 4. Now the price has been increased to rupees 6. The quantity demanded has decreased to or reduced to 5 units. That is the contraction. We have moved to point B. You can name the points as point A and point B. This is point A and this is point B. Okay, this is the contraction from point A to B. The demand और the demand curve has been contracted. Shrink हो गया है, वो expand नहीं हुआ है, shrink हो गया, वापस अपनी position पे चला गया है. Okay, this is due to rise in price. This is contraction of demand. When we move downward on the demand curve,
See, in the next graph, we are moving downward on the demand curve. The demand curve is the same. It is not changing its position or not shifting from its original position. That is DD, demand curve. How does it happen when we move downward, or why it does happen? Because there may have a decrease in prices of the commodity. That's why the consumers are being demanded more units of the commodity. उस कमोडिटी के प्राइसेस डिक्रीज हो गए होंगे, इसी वजह से जो हमारी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो इंक्रीज हो गई होगी. ओके, यू कैन सी when the price was ₹6, the quantity demanded was 5 units. Now the price has been reduced to ₹4 and the quantity demanded has been increased to 7 units. And we can see the point A to B, the movement from point A to B, that is downward movement, and that will be called the extension of demand. The demand curve has been extending. अब ये बढ़ रहा है, फैल रहा है, extension दिखा रहा है. पिछले में shrink हो गया था, सिकुड़ गया था. Okay, that's why the downward movement along with the demand curve is known as extension of demand. Okay, see, consumers buy more when the price of the commodity falls. This is the general consensus. जब prices decrease हो जाते हैं, सस्ती हो जाती हैं चीज़ें, तो हम ज़्यादा खरीदते हैं. So these were the two concepts of movement along the demand curve. One is contraction of demand. Demand shrink हो जाती है, कम हो जाती है because the prices has been increased. And extension of demand means might be prices has been reduced, that's why the demand or quantity demanded has been increased. Prices reduce हो गए, इस वजह से quantity demanded increase हो गई है, and that is known as extension of demand. Demand curve फैल गया है. Now these two situations, contraction and extensions of demand, happen due to change in on price of the commodity. That means extension, and keep remember this thing only. Contraction and extension of demand happens due to change in on price of the commodity. That means contraction and extension do have the direct relation with the price of the commodity. Commodity के price में जब change आएगा, वो change चाहे decrease हो या increase हो, कुछ भी हो सकता है. तो या तो demand contract होएगी या फिर extend होएगी. तो extension and contraction happens due to change in on price of the commodity. Okay, we have two prices. One is on price of the commodity, commodity का अपना price, and the other one is price of the related goods. Price of related goods we will discuss it later on, जो सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस हैं. ओके, तो ऑन प्राइस में कमोडिटी के खुद के प्राइसेस में चेंज होता है, तभी एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है. Now the next point is shift in demand curve. Now the demand curve will shift from its original position either forward और बैकवर्ड. या तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या फिर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. दैट मीन्स एक नया डिमांड कर्व हमारे पास आएगा. ओके, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड. Okay, in this concept the on price of the commodity will not change, price will remain same, because demand states, डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो हमारी उस कमोडिटी की डिमांड होती है. एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितनी यूनिट्स खरीदी जा रही हैं, दैट विल बी कॉल्ड द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी. एंड डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज की जाती हैं, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड. 5 रुपए पे 6 यूनिट्स, 10 रुपए पे 2 यूनिट्स, तो डिफरेंट प्राइसेस हैं और डिफरेंट ही क्वांटिटीज हैं, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड. और एक पर्टिकुलर प्राइस की बात की जाए कि 10 रुपए में 5 यूनिट्स खरीदी गई हैं, तो दैट विल बी द डिमांड. वो 5 यूनिट्स जो है उस कमोडिटी की डिमांड होगी उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. सो शिफ्ट इन डिमांड कर्व हैपेंस either backward shift, means you can say leftward, the demand curve may shift leftward. Forward shift, the demand curve may shift its rightward. Original demand curve के rightward या फिर backward shift हो सकता है demand curve, and we will find a new demand curve. अब हमारे पास नया demand curve आ जाएगा जब वो shift हो जाएगा. तो demand curve mainly shifts from its original position either backward or forward due to change in other things, and on price of the commodity remains constant. commodity का अपना प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा. वो 5 रुपए था या 10 रुपए था उतना ही रहेगा. अदर थिंग्स में चेंज आया होगा, जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़े थे जो भी फैक्टर्स थे. तो Px, प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी, और ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी x, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो PR है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं,
कंज्यूमर की इनकम है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, इन सभी डिटर्मिनेंट्स में चेंज आने पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है. ओके, तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड अदर थिंग्स. अदर थिंग्स चेंज होती हैं तभी हमारा डिमांड चेंज होता है. दैट इज द शिफ्ट इन डिमांड कर्व. या तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या राइटवर्ड. नाउ द बैकवर्ड शिफ्ट दैट मीन्स डिमांड हैज़ बीन डिक्रीज्ड और डिमांड इज डिक्रीजिंग. अगर डिमांड कर्व जो है बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो उसको हम डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे. यू कैन सी इन द ग्राफ डी डी इज द इनिशियल डिमांड कर्व. हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है डी एंड D1 दैट इज द न्यू डिमांड कर्व. जो नेक्स्ट हमारा बैकवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड हमें जो दिख रहा है डी के, वो D1 न्यू डिमांड कर्व है. एंड इट इज शोइंग दैट दैट न्यू डिमांड कर्व डी हैज बीन शिफ्टेड बैकवर्ड और इट्स लेफ्टवर्ड, अपने लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है. एंड दैट इज शोइंग अ डिक्रीज इन डिमांड. हाउ कैन यू से? सी द पॉइंट ए ऑन डी डिमांड कर्व पे जो पॉइंट ए है ये दिखा रहा है हमारे पास क्यू यूनिट्स आर बीइंग डिमांडेड एट प्राइस पी. जब प्राइस पी रुपीज़ था तब हम क्यू यूनिट्स डिमांड कर रहे थे इनिशियली. नाउ देर इज नो चेंज इन द प्राइस. प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, बट वी हैव स्टार्टेड बाइंग Q1 यूनिट्स एज द न्यू डिमांड कर्व इज शोइंग D1 एट प्राइस P. जब प्राइस P को हम नए डिमांड कर्व पे मिलाते हैं, ठीक है, टच करते हैं, तो हमारा क्वांटिटी कितना दिखाता है Q1. और जब प्राइस P को ओरिजिनल डिमांड या इनिशियल डिमांड कर्व पे हमने टच किया एट पॉइंट A, तो हमें जो क्वांटिटी मिली वो Q मिली. क्वांटिटी इज बीइंग शोन एट OX एक्सिस. ओके, एंड OY एक्सिस पे हम प्राइस लेके चलते हैं. तो OX एक्सिस पे जब हमने पॉइंट A को मिलाया तो Q यूनिट्स हमें मिली. ओके, तो दैट मीन्स प्राइस P पे Q यूनिट्स डिमांड की जा रही थी व्हेन द डिमांड कर्व वाज DD. Now the demand curve has been shifted from its original position to its leftward and formed a new demand curve that is D1. नया डिमांड कर्व आ गया है D1. अब इस D1 को प्राइस P पे मिलाया और इसी प्राइस से हमने क्वांटिटी फाइंड की, तो OX एक्सिस पे हमें Q1 पॉइंट मिला. तो दैट मीन्स वी आर डिमांडिंग Q1 यूनिट्स एट प्राइस P. प्राइस में कोई चेंज नहीं आया. पहले प्राइस P पे Q यूनिट्स डिमांड हो रही थी, अब Q1 यूनिट्स डिमांड हो रही है. दैट मीन्स ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो गई है. रीज़न बहुत सारे रहे हो सकते हैं. जितने भी फैक्टर्स थे, अदर फैक्टर्स, उनमें चेंज आया होगा. माइट भी वो इनकम में चेंज आया हो. और कैसा चेंज आया हो? क्योंकि हमें दिख रहा है क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई है, तो दैट मीन्स द इनकम ऑफ द कंज्यूमर मे हैव रिड्यूस्ड. कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है, इस वजह से वो कम खरीद रहा. प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है. सेम एज अदर थिंग्स, जो अदर कमोडिटीज़ हैं, जो रिलेटेड गुड्स हम जिनको कहते हैं सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, उनके प्राइसेस में चेंज आया हो सकता है. ओके, तो अब हम आगे कॉजेज पढ़ेंगे. द कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड. डिमांड जो है डिक्रीज क्यों होती है? फर्स्ट वन इज द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स मे हैव चेंज्ड. जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइसेस चेंज हो गए होंगे. किस तरीके से चेंज हुए हों? कीप रिमेंबर, हम डिक्रीज इन डिमांड के ही कॉजेस पढ़ रहे हैं. फर्स्ट वन, द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स हैज डिक्रीज्ड. जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उनके प्राइसेस, सब्सटीट्यूट गुड्स हैं द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स, और alternate goods you can say, or the goods which can replace each other. वो एक दूसरे की सब्सटीट्यूट होती हैं. जो गुड्स एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो सकती हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं, वो सब्सटीट्यूट गुड है. जैसे हम टी लीव्स एंड कॉफ़ी लेके चले थे, बॉल पेन एंड जेल पेन लेके चले थे. एक की जगह पे दूसरा यूज़ हो सकता है. ओके, तो जब सब्सटीट्यूट गुड, फॉर एग्जाम्पल अगर जेल पेन हमारा सब्सटीट्यूट है एंड बॉल पेन हमारा ऑन कॉमोडिटी है, पेट कॉमोडिटी है, जिसको हम यूज़ करते हैं, तो अगर यहाँ पे प्राइस जो है सब्सटीट्यूट गुड्स का डिक्रीज हुआ है, तो जेल पेन इज द सब्सटीट्यूट. फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइसेस ऑफ जेल पेन्स डिक्रीजेस, अगर जेल पेन्स के प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं तो कुछ कंज्यूमर्स जो हैं बॉल पेन से जेल पेन पे शिफ्ट हो जाएंगे. कुछ, सारे तो नहीं, लेकिन कुछ कंज्यूमर्स जो हैं जो जेल पेन को प्रेफर करना चाहते हैं वो जेल पेन पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका प्राइस कम हो गया है. दैट्स वाई जो ऑन कमोडिटी है बॉल पेन, उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. जबकि बॉल पेन के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया था, जेल पेन के प्राइसेस की वजह से बॉल पेन की डिमांड कम हो गई. The next one is complementary goods. The complementary goods are the goods which are used together to satisfy a need. We have already discussed it. वो goods जो एक particular need को satisfy करने के लिए एक साथ use होती हैं. Individual उनका कोई existence नहीं है, means उनका कोई importance नहीं है. वो goods complementary हैं, वो मिलके ही किसी need को satisfy करती हैं.
तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए होंगे। फॉर एग्जांपल इंक एंड फाउंटेन पेन हमने डिस्कस किया था। अगर फाउंटेन पेन हमारा पेट कॉमोडिटी है एंड इंक जो है वो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो इंक के प्राइसेस अगर इंक बॉटल के प्राइसेस अगर हमारे इंक्रीज हो जाते हैं तो फाउंटेन पेन की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। लोग फाउंटेन पेन को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इंक बॉटल जो है उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, वो कोई दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढने लगेंगे। इसी तरीके से हम कार एंड फ्यूल की बात करें तो फ्यूल्स अगर महंगे हो जाते हैं तो कार का जो यूज़ है वो कम हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स हैज डिक्रीज्ड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कंज्यूमर्स की इनकम डिक्रीज हो गई होगी, इनकम डिक्रीज हो गई है तो कम खरीदेंगे ऑब्वियसली। कंज्यूमर्स हैव डेवलप्ड ए नेगेटिव टेस्ट फॉर द कमोडिटी। कंज्यूमर्स को अब वो कमोडिटी जो है उतनी पसंद, मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात आ रही है, या तो वो कमोडिटी आउट ऑफ ट्रेंड हो गई होगी, आउट ऑफ फैशन हो गई होगी, आउटडेटेड हो गई होगी, ऑब्सोलीट जिसको हम कह सकते हैं, तो इसको हम नेगेटिव टेस्ट कहते हैं। आउट ऑफ ट्रेंड हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई, आउटडेटेड हो गई, दिस आर द नेगेटिव taste for the commodity a consumer may have developed over the टाइम पीरियड। ओवर टाइम जो है कंज्यूमर्स का टेस्ट चेंज होता रहता है, तो कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, पुरानी हो गई है, तो वो चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है, हम नई चीज़ को सर्च करेंगे। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया बट वो आउट ऑफ फैशन हो गई, जिस वजह से जो है हमने उसकी डिमांड कम कर दी है। प्राइस बेशक से चेंज नहीं हुआ हो, डिमांड कम हो गई है। फॉर एग्जांपल जो रोल कैमरास आते थे, जो कोडेक का आता था जिसमें रोल डलती थी, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई थी जब हमारे पास डिजिटल कैमरास आए थे। कंज्यूमर्स आर एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। आज करंट प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, नियर फ्यूचर में जो है कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस जो है डिक्रीज होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चरल आउटपुट्स की बात करें तो हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड में कंज्यूमर्स को पता है कि हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड के ड्यूरिंग जो है सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली प्राइसेस कम होंगे। तो फ्यूचर में प्राइसेस कम है तो आज डिमांड कम कर देंगे क्योंकि फ्यूचर में खरीद पाएंगे कम प्राइसेस के ऊपर। दैट्स वाई कंज्यूमर्स ने डिमांड कम कर दी, हालांकि करंट प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया है। सो these may be the reasons of decrease in demand. The next one is forward shift. This is the shift in demand curve. Forward shift, that is called increase in demand. जब demand curve जो है अपनी original position से forward shift हो जाता है, that means original position से rightward shift हो जाता है, you can say rightward shift in demand curve, that is called increase in demand. Demand जो है increase हो गई है without a change in on price of the commodity. commodity का अपना price change नहीं हुआ है लेकिन demand जो है increase हो गई है, same as the reasons जो हमने decrease के पढ़े थे। Consumers may buy more at the same price due to change in other factors. Now the causes बिल्कुल opposite हो जाएंगे decrease के। For example, price of related goods may have changed. Related goods, substitute goods, यहाँ पे हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, तो सब्सटीट्यूट गुड्स के जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारी कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी प्राइस इंक्रीज हो गए हैं तो जो कॉफ़ी कंज्यूमर्स हैं, कुछ कॉफ़ी कंज्यूमर्स जो इंक्रीज प्राइसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दे विल शिफ्ट टू टी, they will start consume or consuming tea. They have started consuming tea instead of coffee because the prices of coffee has been increased and now they cannot afford the increased prices of the coffee, so some of the coffee consumers are shifted to tea. तो कुछ कॉफ़ी कंज्यूमर्स टी पे शिफ्ट हो गए हैं, तो टी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया लेकिन कॉफ़ी प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से टी की डिमांड इंक्रीज हो गई क्योंकि कॉफ़ी कंज्यूमर्स जो है टी पे शिफ्ट हो गए हैं कुछ लोग। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैज़ डिक्रीज्ड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो गए हैं, इंक बॉटल के प्राइस डिक्रीज हो गए हैं तो लोगों ने फाउंटेन पेन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो फाउंटेन पेन के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया बट इंक बॉटल के प्राइसेस डिक्रीज हो गए जिस वजह से फाउंटेन पेन की डिमांड इंक्रीज हो गई है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स हैज़ इंक्रीज, कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज हो गई है, ओके तो वो ज़्यादा खरीद पाएंगे करंट प्राइसेस के ऊपर। कंज्यूमर्स हैव डेवलप्ड अ फेवरेबल टेस्ट फॉर द कमोडिटी। अब कंज्यूमर्स फेवरेबल टेस्ट मीन्स कोई चीज़ फैशन में है, ट्रेंड है, मीन्स किसी चीज़ का ट्रेंड है या द थिंग और कमोडिटी इज ट्रेंडिंग नाउअडेज, तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, बेशक से प्राइस में कोई चेंज ना आए फिर भी वो ट्रेंडिंग है इस वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। कंज्यूमर्स आर एक्सपेक्टिंग अ राइज इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में प्राइस राइज होने वाले हैं, करंट प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया है तो इसी प्राइस पे कंज्यूमर्स डिमांड इंक्रीज कर देंगे क्योंकि फ्यूचर में उसके प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। तो कॉजेज एग्जैक्टली ऑपोजिट है इंक्रीज और डिक्रीज के। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट। What does it mean? Cross price effect is the concept which shows the
इफेक्ट ऑन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। डिमांड पे जो इफेक्ट पड़ता है रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस का। ऑन प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता, कॉमोडिटी के ऑन प्राइसेस में अपने खुद के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता, बट सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है, दैट इज नॉन एज क्रॉस प्राइस इफेक्ट। यू कैन सी प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, इफ द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, अगर इंक्रीज होता है सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस, तो डिमांड फॉर ऑन कमोडिटी, कीप रिमेंबर दैट इज द डिमांड फॉर ऑन कमोडिटी। हम अपनी कमोडिटी की डिमांड की बात कर रहे हैं, एंड प्राइस किसका है, प्राइस इज ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस हैं, डिमांड ऑन कमोडिटी की है, तो सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो डिमांड इंक्रीजेस ऑफ टी, टी इज ऑन commodity and coffee is substitute. Okay, the next one is decrease in price. You can see if the prices of coffee decreases, the demand for tea also decreases, because the tea consumers or those who have been shifted to tea will shift to coffee, या तो टी कंज्यूमर्स या फिर जो टी पे शिफ्ट हुए थे वो वापस से कॉफ़ी पे चले जाएंगे क्योंकि कॉफ़ी के प्राइसेस डिक्रीज हो गए हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज the relation, the positive relation between the price of substitute goods and demand of on commodity. You can see पॉजिटिव रिलेशन है किसमें, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ ऑन कमोडिटी। सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइसेस में और डिमांड फॉर ऑन कमोडिटी में पॉजिटिव रिलेशन है। ये प्राइस है सब्सटीट्यूट गुड्स का जो कि इंक्रीज हुआ, ये डिमांड है ऑन कमोडिटी की जो कि इंक्रीज हुई, तो दैट मीन सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने पे ऑन कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होगी, और सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस डिक्रीज होने पे ऑन कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज होगी। दैट्स व्हाई वी कैन से देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स एंड द डिमांड ऑफ ऑन कमोडिटी। You can see in the graph increase in the price of substitute goods. Okay, and the price P, which we are able to see in the graph here, the price P, दैट इज द प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट का प्राइस नहीं दिखा रहे हैं, जो भी कर्व होगा डिमांड का उस पर हम सिर्फ ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी ही दिखाएंगे, सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस नहीं दिखा रहे हैं। ओके, दैट इज द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड। सब्सटीट्यूट का प्राइस नहीं दिखाया जाता है, ओके, ना ही कॉम्प्लीमेंट्री का, बिकॉज हम लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का ही रिलेशनशिप शो करते हैं। ओके, तो प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी विच इज अनचेंज्ड, जो कि चेंज नहीं हुआ है, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड हैज़ बीन इंक्रीज टू Q टू Q1, Q से Q1 पे इंक्रीज हो गई है क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। ओके, तो सब्सटीट्यूट गुड्स के जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑन कमोडिटी पे शिफ्ट हो गए हैं, तो कमोडिटी की डिमांड जो है इंक्रीज हो गई है। सेम एज ऑपोजिट है, डिक्रीज इन द प्राइस, सब्सटीट्यूट के प्राइसेस डिक्रीज हो गए, कॉफ़ी के प्राइस डिक्रीज हो गए, कॉफ़ी सस्ती हो गई, तो जो टी कंज्यूमर्स हैं वो कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी डिमांड जो है कम हो जाएगी, Q से Q1 पे आ जाएगी। द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो प्राइस हैं अगर इंक्रीज होते हैं, ओके, यू कैन सी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो डिमांड फॉर ऑन कमोडिटी डिक्रीजेस। कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस इंक्रीज हुए, इंक बॉटल के प्राइसेस इंक्रीज हुए, तो फाउंटेन पेन की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, लोग फाउंटेन पेन यूज़ करना कम कर देंगे, एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइस डिक्रीज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के तो इंक्रीज हो जाएगी डिमांड पे। दैट मीन्स देर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है, प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हुई। ओके, so here it is the graph, here is the graph, the decrease in the price of complementary goods. The first graph is showing the decrease in the price of complementary goods. Complementary goods के price decrease होने पे जो हमारी demand है वो increase हो जाएगी। Okay, it is showing increase, D से D1 पे चला गया है, demand curve shift हो गया है, and quantity demanded has been increased from Q to Q1. एंड द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, Q से Q1 पे आ जाएगी, नेगेटिव रिलेशन है। द नेक्स्ट वन इज डिमांड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स।
अभी हमने रिलेटेड गुड्स के प्राइस देखे थे अदर थिंग्स में, वो हम देखेंगे डिमांड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की इनकम और डिमांड के ऊपर, डिमांड का क्या रिलेशनशिप है। ऑब्वियसली पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम एंड डिमांड हैव पॉजिटिव रिलेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स। यहाँ पे हम दो तरह की गुड्स की बात करेंगे, वन इज नॉर्मल गुड एंड अदर वन इज इंफीरियर गुड्स, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन में। लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स को दिखाता है एंड एक्सेप्शन इंफीरियर गुड्स को दिखाता है, वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर हम बात करें, ओके, तो इंक्रीज इन इनकम विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड। नॉर्मल गुड्स की डिमांड की बात हो रही है। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर्स नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर देंगे। लोग अमीर हो रहे हैं तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज कर देंगे, तो डिमांड कर्व डी से D1 पे शिफ्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी डिमांड। अगर इनकम डिक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिक्रीज होगी क्योंकि नॉर्मल गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, रादर कंज्यूमर्स की इनकम डिक्रीज हो गई है। ओके, तो नॉर्मल गुड्स की उतनी ही क्वांटिटी पहले के मुकाबले अब नहीं खरीद पाते हैं, दे विल डिक्रीज द डिमांड। सो नेक्स्ट वन इज इनकम एंड डिमांड हैव नेगेटिव रिलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स। जब बात इंफीरियर गुड्स की जाए, इंफीरियर गुड्स आर द गुड्स विच हैव लोअर क्वालिटी एज कम्पेयर टू और कंपैरेटिवली लोअर क्वालिटी देन नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के मुकाबले इनकी क्वालिटी जो है कम होती है, वो इंफीरियर गुड्स हैं। इनका नेगेटिव रिलेशन होता है, दैट मीन्स इफ इनकम इंक्रीजेस, ओके, इफ इनकम इंक्रीजेस से इंक्रीज इन इनकम रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। अगर लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, लोग अमीर हो रहे हैं, ओके, वेल ऑफ हो रहे हैं, तो दे विल स्टार्ट बाइंग नॉर्मल गुड्स। ओके, वो इंफीरियर गुड्स को छोड़ देंगे, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देंगे। सो ग्राफ में दिख रहा है डी से D1, ये जो कर्व है हमारा इंफीरियर गुड्स की बात हो रही है, डी से D1 पे शिफ्ट हो गया है। अगर इनकम डिक्रीज हो जाती है, here decrease in income result in increase in demand of inferior goods। अगर इनकम डिक्रीज हो जाती है तो लोग inferior goods की डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है और डिमांड कर्व डी से D1 पे शिफ्ट हो गया है। ओके, तो दीज वर द केसेस। इसी तरीके से हम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का भी बना सकते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी पॉजिटिव रिलेशन रखते हैं, प्राइस अनचेंज्ड रहेगा। ओके, अगर फेवरेबल टेस्ट डेवलप किया है, फैशन आया है, ट्रेंडिंग है कोई कमोडिटी, तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, रिमेनिंग द प्राइस अनचेंज्ड। अगर आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है तो उसका डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस सेम रहेगा लेकिन डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो दीज वर द केसेस जिनको हम इजीली अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं।